We discussed in our previous video what is the linear equation of two variable and how we solve the linear equation and how we determine the linear equation have a many solution, have a unique solution, have a infinite solution, no solution, and we discussed about the method to solve the simultaneous equation. First is by substitution, second by eliminating method, थर्ड by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हम लोगों ने समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि सीखा है. और आल्सो वी डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द value of the variable of the given equation with the help of the graph. Today we discuss how to reduce the given equation in a simultaneous form and how to solve it. Okay, for example, 1 upon 2x minus 1 upon y, 1 upon 2x minus 1 upon y equal to minus 1, and second equation is 1 upon x plus 1 upon 2y equal to 8. We have need to change in a linear equation. So therefore, let us suppose x equal to 1 upon x equal to u or 1 upon y equal to b. 1 upon x equal to u और 1 upon y equal to b. अब क्या होगा बेटा, 1 upon x 1 upon 2 into 1 upon x minus 1 upon y equal to minus 1, 1 upon 2 u v equal to 1. At the place of 1 upon x we substitute y u and 1 upon y we substitute v. Therefore u minus 2v by 2 equal to minus 1, u minus 2v equal to minus 2. This is the equation number first. Again 1 upon x plus 1 upon 2, 1 upon y equal to 8. That is replaced by 1 upon x u, 1 upon y v. That is 8. LCM 2u plus v equal to 8, 2u plus v equal to 60. This is the equation number 2. Okay, multiply. We are going to equate the coefficient. Eliminating method apply करने जा रहे हैं. यहाँ v है, यहाँ minus 2v है, multiplied by 2. Equation 2 multiplied by 2 we have 4u plus 2v equal to 32. Therefore 4u plus 2v equal to 32 और u minus 2v equal to minus 2. On adding 2u to u cancel, 5u equal to 30, u equal to 5 6 36. Again now putting the value of u in equation 1. So we have u is 6, 2v equal to minus 2, minus 2v equal to minus 2 minus 6, 2v equal to minus 8, v equal to 4. u equal to 1 upon x, then 1 upon x equal to u is 6, तो 1 upon x equal to 6. पलट दो बेटा, x equal to 1 upon 6. Similarly v equal to 4, 1 upon y equal to 4 because v is 1 upon y. पलट दो बेटा, y equal to 1 by 4. तो सॉल्यूशन क्या आया, x equal to 1 by 6, y equal to 1 by 4. अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने आंसर को तो यहाँ वैल्यू पुट करो. पुट करोगे तो क्या पा जाओगे, चेक कर रहे हैं
1/2 इंटू 1/1/6, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है 1/4, 6/2 -4, 2 3 6, 3 -4 दैट इज -1 आ रहा था। यहाँ पुट करो बेटा, डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 हो जाएगा, अपान में है, यहाँ 4/2 हो जाएगा, 6 + 2 दैट इज 8 आ रहा है। तो विदा है, आप चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सही है कि नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंपलसरी ये है कि सबसे पहले हम लोग 1/x को सपोज कर ले u, 1/y को v सपोज कर लें, और फिर हमारा इक्वेशन लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let us suppose 1/2 3 2x plus 3y minus 12/7 plus 12/7 3x minus 2y is equal to, बेटा गिवन है 1/2 7/2x minus plus 3y minus प्लस है 4/3x minus 2y इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 गिवन। इसे हमें सॉल्व करना। अब देखो यहाँ दो वेरिएबल, ओके, तो 1/2x plus 3y इक्वल टू u, 2x को मान लिया 1/u, और 1/3x minus 2y इक्वल टू b सपोज। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ बेटा, 2x plus 3y अपान के यहाँ पर क्या लिखेंगे u, तो u/2 देयरफॉर प्लस 12/7b इक्वल टू 1/2, एलसीएम ले लो, 14 हो जाएगा, 7u एंड 7 to 24 हो जाएगा, b इक्वल टू 1/2 टू 7 बेटा, तो 7u प्लस 20 इक्वल टू 7। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अगेन इसमें पुट करो, फिर से देख लो, 1/2x plus 3y को u सपोज किया है, तो यहाँ u/2, यहाँ 12/7b हो जाएगा, फिर हमने एलसीएम ले लिया है, 7 2 का 14 एलसीएम होता है, तो 7u 24b और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 7u प्लस 4v इक्वल टू 2। क्या करें, माइनस कर दो बेटा, कैंसिल, 24 से 4 माइनस करो, 20v आ जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ गया, 5 4 20 1/4। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 पुट v इक्वल टू 1/4। क्या मिलेगा बेटा, v इक्वल टू 1/4 पुट करोगे, 7u प्लस 24, v की वैल्यू 1/4 आई है, इज इक्वल टू 7 6, 7u इक्वल टू 7 माइनस 6, u इक्वल टू 1/7। u इक्वल टू क्या सपोज किए हो, 1/2x प्लस 3y है 1/7, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। इक्वेशन नंबर 3।
v की वैल्यू क्या है बेटा 1/3x माइनस 2y इक्वल टू v, और v की वैल्यू क्या आई है 1/4i, 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/4। ओके, अब फिर 3x माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 4, ये फोर्थ। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से। क्यों? वी आर गोइंग टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ y, तो 3 और 2, 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है, यानी हमको इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। ओके, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 3 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई है 3 2 जा 6। ओके, तो 6 ये भी 6 ये भी हो जाएगा, तो यही करेंगे 2 2 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, 7 2 14। 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा 3 3 9x और 3 2 6y 3 4 12, ऐड कर 9 4 13 और 12 और 14 26, तो x इक्वल टू 3 2 6 2r। अगेन फ्रॉम थर्ड वैल्यू पुट कर दो x के 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 7 माइनस 4, y इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। तो x इक्वल टू 1 2 एंड y इक्वल टू 1। अब आप चेक करना चाहते हैं अगर अपने आंसर को, तो आप क्या करो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। एक मैं चेक करके दिखाता हूँ 1/2 x की वैल्यू क्या आई है 2 2 2 जा 4 और 3, 4 प्लस 3 प्लस 12/7। s की वैल्यू क्या आई है 2 2 3 6, 6 माइनस 2 1/14 और 12/6 माइनस 2 4 28 हो जाएगा। 14 मेरा एलसीएम हो गया। ओके, और 28 एलसीएम होगा, यहाँ 2 आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। 14/28 आ रहा है, यानी मेरा आंसर सही है। तो ये कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर से देख लो क्या किया है 2x प्लस 3y और 3x माइनस 2y, 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो हमने 2x प्लस 3y को क्या सपोज कर लिया है 1/2x प्लस 3y को u सपोज कर लिया है, और 1/3x माइनस 2y को हमने b सपोज कर लिया, और फिर यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दी, एलसीएम ले लिया है। फिर सिमल्टेनियस इक्वेशन हो गई, तो कोई जरूरी नहीं है आप एलिमिनेटिंग मेथड से करो, आपके पास एलिमिनेटिंग मेथड भी है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन भी है, आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। एज यू विश यू कैन सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन विद द 3 methods. Okay, next is 5/x plus y, 5/x plus y, 2/x minus y equal to -1, 15 7 10, 15/x plus y 10। ओके जी, ये दो इक्वेशन है। इसमें क्या कर बेटा, इसमें भी वही दिया है 1/x प्लस वाई को क्या सपोज कर लें u, 1/x माइनस वाई को क्या सपोज करें v। अलग अलग है 1/x
एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। क्या मिलेगा बेटा हमको, देखो यहाँ पुट करोगे 5u मिलेगा और यहाँ से मुझे -2 भी मिलेगा, इक्वल टू हाउ मच, -1 फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ 15 है, 15u मिलेगा और यहाँ 7b मिलेगा इक्वल टू 10 सेकेंड। इक्वेशन कन्वर्ट हो गए साइमल्टेनियस इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करके हमें यू वी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और जब यू वी की वैल्यू फाइंड हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, जब यू वी की वैल्यू फाइंड होती है फिर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे यू वी की और हम एक्स वाई की वैल्यू इजी गोइंग फाइंड कर लेंगे। अब जरा देखो, इसको अगर इक्वेट करते हो तो 2 7 14, इसको 7 से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको इक्वेट कर दें तो हमें खाली एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 15, 15 ही बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई तो ये भी 15 हो जाए, तो यही करें। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। 3 5 15, 3 2 जा 6, 3 1 3, ये थर्ड वन। माइनस कर दो बेटा, कैंसिल, 7 6 13 भी इक्वल टू 13, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 5u v is 1 -2 into 1 equal to -1, 5u equal to -1 plus 2, u equal to 1/5। ओके, तो हमने देखा u इज इक्वल टू कितना है 1/5 और u क्या है बेटा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे 4 सपोज कर लो और v इक्वल टू कितना गिवन है 1 आया है और b 1/x माइनस वाई, 1/x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये फिफ्थ। और x प्लस वाई कितना आया है 5 है, सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर दो तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3। सिंस x प्लस वाई इक्वल टू हाउ मच 5, x की वैल्यू पुट करो यहाँ, 3 प्लस 5 वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लो, कैसे करोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 5/3 प्लस 2, 2/3 माइनस 2, 5/5, 2/1, 1 माइनस 2 दैट इज -1 आ रहा है, यानी हम लोग सही है। ओके, तो ये थे न्यूमेरिकल। अब एक न्यूमेरिकल और देखो बेटा, लेट अस सपोज ऐसे न्यूमेरिकल दे दे x प्लस वाई इक्वल टू 5xy और x 2x माइनस 3y, 3x प्लस 2y इक्वल टू दे दे 7xy, 13xy। ऐसे न्यूमेरिकल हो तो क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे LHS RHS को। किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई से, और जब एक्स वाई से आप डिवाइड करेंगे तो क्या पा जाओगे, वन अपान वाई प्लस 1/x इक्वल टू 5। इसको डिवाइड करो बेटा,
3x upon xy, 2y upon xy, 13 upon xy, कैंसिल। इजी है बेटा। 3 upon y, 2 upon x, और अब तो आप जानते ही है, हमने आपको सपोज करके दिखाया है कि क्या सपोज कर लो, इसे फर्स्ट कह लो, इसे सेकेंड। तो लेट 1 upon x इक्वल टू u, 1 upon y इक्वल टू v फ्रॉम 1 क्या मिलेगा हमको, 1 upon y v है तो v प्लस u इक्वल टू 5 थर्ड। और यहां देखो 3v 2u 30। अब हमें इक्वेशन को ऐड करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3v 3v इक्वल हो जाएंगे तो 3v 3u और 5 3 15। सब्ट्रैक्ट कर, सब्ट्रैक्टिंग ओके, कैंसिल। 2u से -u -2 u इक्वल टू 2 ओके। u प्लस v इक्वल टू हाउ मच 5 फ्रॉम थर्ड, u2 v हाउ मच 5 तो u v इक्वल टू 3, u इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 3 ओके। तो u इक्वल टू 2 और u इज 1 अपॉन x, पलट दो बेटा, v इक्वल टू 3, 1 अपॉन y इक्वल टू 3, पलट दो बेटा, therefore x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3, ये आंसर आ गया। So today we discuss how to convert the simultaneous equation. A given equation is simultaneous equation. कोई इक्वेशन दी है तो उसे दो चार एक ही समीकरण में कैसे बदलोगे, आज मैंने ये सीखा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हाउ टू मेंटेन अ सिमल्टेनियस इक्वेशन, हाउ टू मेंटेन अ, कहते एक व्यक्ति 2 पेन और 5 कलम खरीदता है 20 रुपए में, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20, 3 कलम और 10 पेन खरीदता है 30 रुपए में, तो 2x प्लस 10y इक्वल टू 30। तो मेंटेन करेंगे, हाउ टू मेंटेन द इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन अननोन इन अ गिवन इक्वेशन। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।